السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک کی فضیلت، اہمیت اور اس کی برکتوں کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزہ داروں کے لیے کون کون سی نعمتیں نازل فرمائی ہیں اور کون کون سی برکتیں ان کے لیے اللہ رب العزت اس مہینے میں نازل فرماتا ہے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دینی اور علمی کام کو باضابطہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا کوئی ڈونیشن اللہ کے راستے میں وہ دینا چاہے تو وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی وہ اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے، ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کی ہر گھڑی میں گنہگاروں کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے۔ خاص طور سے جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ گنہگاروں کی اللہ رب العزت بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تنبیہ الغافلین میں سیدنا فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل حدیث نقل کی جس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر یعنی جمعہ کے غروب آفتاب تک ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے مستحق قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کا آخری دن آتا ہے تو پہلی رمضان سے لے کر اب تک جتنے آزاد ہوئے تھے اس کی گنتی کے برابر اس آخری ایک دن میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں اس ماہ مقدس میں نازل فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے ثواب کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے شب قدر کا قیام کرے گا اس کے اگلے گناہوں کو اللہ رب العزت بخش دے گا۔ حضرات محترم، ان تینوں احادیث بالا میں اللہ رب العزت کے کس قدر عظیم الشان انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، روزانہ 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کی بخشش ہو جایا کرتی ہے جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے حقدار پا چکے ہوتے ہیں۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ کی تو ہر گھڑی میں 10 لاکھ گنہگار عذاب نار سے آزاد قرار دیے جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کی آخری شب کی تو کیا خوب بہار ہے کہ جتنے سارے مہینے میں کے رمضان میں بخشے گئے تھے اس کے شمار کے برابر گنہگار اس ایک رات میں عذاب نار سے نجات پاتے ہیں۔ اے کاش اللہ عز و جل ہم گنہگاروں اور بدکاروں کو بھی ان مغفرت یافتگان میں شامل کر لے۔ حضرات محترم، اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو پانی پینے کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہے یقیناً وہ آپ کے ایمان میں اضافہ فرما دے گا۔ آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ دار کو پانی پلائے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا کہ گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں یا اس جگہ جہاں پر پانی نہ ملتا ہو؟ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ حکم عام ہے، اگرچہ فرات کے کنارے پر بھی پانی
पिला दे तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ये नेमतें अता फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर किस कदर एहसान है कि पानी जैसी असीम नेमत हमें बिल्कुल मुफ्त अता फरमा दी और दूसरों को पिलाने पर हमें बेहद सवाब भी अता फरमाता है। हदीस में है, जिसने मुसलमानों को वहाँ पानी का घूंट पिलाया जहाँ पानी मिलता है तो गोया गर्दन यानी ग़ुलाम को आज़ाद किया, और जिसने मुसलमानों को ऐसी जगह पानी का घूंट पिलाया जहाँ पानी नहीं मिलता है तो गोया उसने उस ग़ुलाम को ज़िंदा कर दिया। अल्लाहु अकबर। माह रमज़ान में अपने रोज़ेदार भाई को पानी पिलाने वाले के तो सारे गुनाह ही माफ़ फरमा देता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। रोज़ादार, हज़रात मोहतरम, रोज़ादार किस कदर खुश नसीब है कि वो चाहे जाग रहा हो या सो रहा हो, हर वक्त ही वो इबादत में है। गोया उसकी हर सांस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में गुज़र रही है। उस खुश नसीब के लिए एक हदीस के मुताबिक सुबह व शाम 70 हज़ार फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआएं मांगते रहते हैं। उसका बिस्तर, लिबास, उसकी नालैन वग़ैरह अशिया भी उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत और उसके लिए दुआएं करती रहती है। चुनांच साक़िए कौसर मालिक जन्नत हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन माह रमज़ान में बेदार होता है और लेटे लेटे करवटें बदलता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़िक्र में लगा रहता है तो उससे फ़रिश्ता कहता है, उठ, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुझ पर रहम करे। फिर जब वो उठ खड़ा होता है तो उसका बिछौना उसके लिए दुआ करता है, ऐ अल्लाह इसको जन्नत के आला बिछौने अता फरमा। और जब वो अपना लिबास पहनता है तो वो लिबास उसके लिए दुआ करता है, ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको जन्नत का लिबास अता फरमा। और जब वो जूते पहनता है तो वो जूते उसके लिए दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इसको पुलसिरात पर साबित कदम रखना। और जब बर्तन लेता है तो वो बर्तन उसके लिए दुआएं करता है, ऐ रब्बुल इज़्ज़त इसको जन्नत के बर्तन अता फरमा। और जब वो वज़ू करता है तो पानी उसके लिए दुआ करता है, ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके गुनाहों और इसके ख़ताओं को पाको साफ़ कर दे, इसको ख़ताओं से पाको साफ़ कर दे। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा होता है यानी नमाज़ पढ़ने लगता है तो उसके लिए काबतुल्लाह शरीफ तक दुआएं करता है, ऐ अल्लाह इसकी कब्र को मुनव्वर और कुशादा कर दे। और अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी तरफ नज़र करता है और फरमाता है, ऐ मेरे बंदे तू जो कुछ दुआ मांगेगा मैं कबूल फरमाऊँगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, माह रमज़ान के जो नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनमें अता फरमाई है उसकी कदर हम लोग जानें और माह रमज़ान में रोज़ा रख कर उसकी रहमत भरी मुबारक सातों से हमें फ़्यूज़ व बरक़ात उठाना चाहिए। आपको मुबारक हो कि एक तो रोज़ा के दौरान ख्वाह आप जाग रहे हों या सो रहे हों, हर लम्हा आपका इबादत में गुज़र रहा है। और तो दूसरी तरफ आपको आपका लिबास, आपका बर्तन वग़ैरह तक दुआएं दे रहे हैं। बल्कि करम बालाए करम तो ये है कि ख़ुद खालिक कायनात की रहमत जोश पर है और फरमाया जा रहा है कि ऐ बंदे तेरा काम मांगे जाना है और हमारा काम दिए जाना है। हज़रात मोहतरम, अब मैं आपके सामने एक ऐसा एक दीवाने रमज़ान की ईमान अफरोज़ दास्तान आपके सामने मैं पेश करूँगा कि जिसमें अगर आप उसको सुनेंगे तो यकीनन आपके इल्म और अमल दोनों में ही इजाफ़ा होगा। एक ऐसा शख्स था, यह किस्सा बहुत ही ज़्यादा इबरतनाक है और बहुत ही ज़्यादा ये नसीहत आमोज़ वाक़या है जिसको हम में से हर शख्स को सुनना चाहिए और इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। एक ऐसा शख्स था जिसका नाम मोहम्मद था। वो तमाम साल नमाज ना पढ़ता था और जब रमज़ान शरीफ का मुतबर्रक महीना आता तो वो पाक साफ़ कपड़े पहनता और पाँचों वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता और अपनी साले गुज़िश्ता की क़ज़ा होने वाली नमाज़ों को भी पढ़ता। लोगों ने इससे पूछा कि तू ऐसा आखिर क्यों करता है, यानी तू पूरा साल तो नहीं पढ़ता और रमज़ान आता है तू नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, तू आखिर ऐसा क्यों करता है?
तो उसने जवाब दिया कि ये महीना रहमत, बरकत और तौबा व मग़फ़िरत का महीना है, शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मेरे इसी अमल के सबब बख्श दे। जब उसका इंतकाल हो गया तो किसी ने उसे ख्वाब में देखा तो पूछा मा फ़अलल्लाहु बिका, यानी अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया, तेरे साथ आखिर मरने के बाद क्या हुआ। तो उसने जवाब दिया कि मेरे रब ने मुझे रमज़ान शरीफ की ताज़ीम व तौक़ीर करने के सबब बख्श दिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, देखा आपने खुदाए रहमान माह रमज़ान के कदरदान पर किस दर्जा मेहरबान है कि सिर्फ माह रमज़ान में इबादत करने वाले की मग़फ़िरत फरमा दी। इस हिकायत से कहीं कहीं ये ना कोई समझ बैठे कि अब तो जनाब सारा साल नमाज़ों को छुट्टी हो गई, सिर्फ रमज़ान मुबारक में रोज़ा और नमाज कर लिया करेंगे और सीधे जन्नत में चले जाएंगे। हज़रात मोहतरम, दरअसल ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत पर है। वो बेनियाज है, किसी को चाहे तो बज़ाहिर किसी छोटे से नेक अमल पर ही बख्श दे, और अगर किसी को चाहे तो बड़ी बड़ी नेकियों के बावजूद किसी एक छोटे से गुनाही के सबब उसको पकड़ ले। ये सब कुछ उसी की मर्ज़ी पर मुनहसिर है। हज़रात मोहतरम, कोई नेकी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। ना जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कौन सी नेकी पसंद आ जाए और कौन सी, और कोई छोटे से छोटा गुनाह भी कभी नहीं करना चाहिए कि ना जाने किस गुनाह के सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ हो जाए और उसका दर्दनाक अज़ाब आकर उसको घेर ले। हज़रात मोहतरम, हज़रत सैयदना फ़क़ीह आज़म मुहद्दिस कोटलवी रहमतुल्लाह अलैह अख़लाक़ुस सालिहीन में यह हदीस नक़ल फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीन चीज़ों को तीन चीज़ों में मख्फ़ी यानी पोशीदा रखा है। तीन चीज़ों में पोशीदा रखा है। अपनी रज़ा को अपनी अताअत में मख्फ़ी रखा है, अपनी नाराज़गी को अपनी नाफरमानी में, और अपने औलिया को अपने बंदों में पोशीदा रखा है। हज़रात मोहतरम, ये हदीस नक़ल करने के बाद फ़क़ीह आज़म फरमाते हैं, लिहाजा हर अताअत और हर नेकी को अमल में लाना चाहिए कि मालूम नहीं किस नेकी पर वो राज़ी हो जाए, और हर बदी से इंसान को हर बुराई से बचना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं कि वो किस गुनाहों और किस बुराई के सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ हो जाए। ख्वाह वो बुराई कैसी ही छोटी हो, मगर किसी के तिनके का खलाल करना और एक मामूली सी बात है, या किसी हमसाये की मिट्टी से उसकी इजाज़त के बग़ैर हाथ धोना गोया एक छोटी सी बात है, मगर मुमकिन है कि इस बुराई में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी मख्फ़ी हो। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से भी इंसान को बचना चाहिए। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि वो इंसान जो रहमत के तलबगार हैं वो समझ लें कि जब वो बख्शने पर आता है तो बज़ाहिर नेकी कितनी ही छोटी हो वो ज़रूर करम फरमाता है। चुनान इस ज़िम्ने में बहुत सारी अहादीस मरवी है। मसलन क़यामत के रोज़ एक शख्स को सिर्फ इसलिए बख्श दिया जाएगा कि उसने एक प्यासे को पानी पिलाया था। एक हदीस में हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने आलीशान भी मिलता है कि एक शख्स ने रास्ते में से एक कांटेदार शाख को इसलिए हटा दिया ताकि लोगों को उससे तकलीफ़ न पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर खुश होकर उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। एक सही हदीस में तकाज़े में नरमी यानी कर्ज़ की वसूली में आसानी करने वाले एक शख्स की नजात होने का वाक़या भी आया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के वाक़यात जमा करने जाएं तो इतने हैं कि हम जमा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें इतनी अजीम हैं कि हम उसको समझ नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें और बरकतें बेशुमार हैं। अगर हम उसकी रहमतों को, उसकी बरकतों को, उसकी आज़मतों और रिफ़तों को शुमार करना चाहेंगे तो कभी शुमार नहीं कर सकते। हज़रात मोहतरम, ये माह मुक़द्दस ऐसा महीना है जिसमें हम में से हर शख्स को कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि फ़र्ज़ जो रोज़े हैं उनको तो ज़रूर रखना चाहिए, साथ ही साथ जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उसको तो ज़रूर करना चाहिए। ये तो फ़र्ज़ है, वो तो हम में से हर शख्स को करना है, लेकिन फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का भी हमें ख्याल रखना है कि नवाफिल की भी अदायगी हमको करना है। कोई नफ़ल ऐसा ना हो जो हमसे छूटने पाए, कोई सुन्नत ऐसी ना हो
جو ہم سے چھوٹنے پائے، کوئی ایسا مستحب نہ ہو جو ہم سے چھوٹنے پائے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات اور نوافل کی بھی خاص طور سے ہم پابندی کریں۔ ہماری زبان ہر وقت ذکر و اذکار میں مشغول رہے، یہ ہم کوشش کریں کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ یہ ممکن ہو تو ہم ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اور پوری رات نہ صحیح تو رات کے ایک حصے میں فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد تہجد کی ضرور ادائیگی کرے۔ یہ تمام نعمتیں آپ کو رمضان المبارک میں اگر یہ تمام اعمال آپ کریں گے تو اللہ رب العزت اتنی عظیم نعمتیں آپ کو عطا فرمائے گا جو شمار سے باہر ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس میں اتنی زیادہ برکتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن انسان اس سے غافل رہتا ہے۔ آج بھی موقع ہے کہ انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کے فرمان پر چلے، تبھی اللہ رب العزت راضی ہوگا۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید ہم اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتوں کے بارے میں جو رمضان المبارک میں نازل فرمائے ہیں وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔